نکاح کے بعد اچانک ہی کہیں چلا گیا تھا۔ زالے کو اپنے سوگ منانے سے فرصت کہاں تھی جو اس کے آنے جانے کا حساب رکھتی۔ 1 2 3 اور پھر ہفتہ گزر گیا تھا جب وہ وہاں نہیں آیا تھا۔ ایک ہلٹر ٹائپ مرد اور عورت ہمہ وقت اس کے سر پر سوار رہتے تھے، جن کے لب و لہجے سے یہی لگتا تھا کہ وہ کم سے کم ہم زبان نہیں تھے۔ اسکان اسے کہاں لایا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف اسکان تھا، جسے نکاح میں شامل ایک دوست نے شہر اور اس کے گھر کے حالات بتائے تو تیش میں وہاں سے بنا بتائے نکل گیا تھا۔ اس نے شہر کا چپا چپن چھان مارا تھا، پر مرہا اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے آئے دن کچھ دن دستگیر اور زنجبیل پہ بھی نگاہ رکھی، پر کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ تم کیسے خدا کی ذات کو بھول گئے تھے اسکان؟ جو کچھ تم نے زالے کے ساتھ کیا، اس کا بھگتنا میری معصوم بیٹی کو پڑ رہا ہے۔ درخشندہ اس وقت غم سے نڈال تھی۔ کیسے دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اور وہ ابھی تک مرہا کو نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ماما پلیز، میں نے کتنی بار آپ کے سامنے ریکویسٹ کیا تھا، پر آپ کو کبھی فرق نہیں پڑا۔ میں جو چاہا جب میں نے اسے حاصل کر لیا ہے، تو میں اب اس بات پر مطمئن ہوں جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ یہی دنیا کا اصول ہے، جو نہ ملے اسے چھین لو۔ اسکان کی ڈھائی برقرار تھی۔ کیسا مذاق بنا لیا تم نے؟ میری بیٹی کا کیا قصور ہے اسکان؟ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ درخشندہ کی بات پر وہ پھر سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مرہا کو کڈنیپ کر کے سب سے زیادہ کسے فائدہ ہوگا، اور اگر یہ انتقام میں ہوا ہے تو زنجبیل۔ اس کے دماغ کی سوئی پھر سے زنجبیل پر آ کر اٹکی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس کے گھر پہنچا تھا اور اسے زیادہ تک دو نہیں کرنا پڑنا تھا۔ سامنے ہی وہ ریلیکس انداز میں صوفے پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آمد پہ چونکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک ناگواری سی لہر زنجبیل کے پورے وجود میں سراہد کر گئی تھی۔ دیکھو، ہماری جو بھی لڑائی ہے اس میں مرہا بے قصور ہے۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ آئی سویر اسے ہلکی سی بھی چوٹ لگی میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا زنجبیل۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس پہ جھپٹا تھا۔ شٹ اپ، اپنے جیسا گھٹیا سمجھ رکھا ہے سب کو۔ مرہا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اسے صرف بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ تم سے زیادہ رشتوں کے تقدس کا احساس ہے مجھے۔ زنجبیل نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ یہ سب تم نے زالے کے لیے کیا ہے نا، تو تم اسے کبھی نہیں پا سکو گے، کیونکہ شادی کر چکے ہیں ہم دونوں۔ اب تمہیں ملا کو لے کر مجھے بلیک میل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسکان نے گویا اسے متصل کرنا چاہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ زالے کبھی بھی میرے لیے اس حوالے سے اہم نہیں رہی۔ تم نے شادی کر لی، مبارک ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم جیسے لوگ زبان کا پاس نہیں رکھ سکتے۔ تم اس سے محبت کے دعوے دار شخص مخصوص دعویٰ کر سکتے ہو۔ اسکان حیدر، جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں عزت سے اپنایا جاتا ہے، ایک زمانے کے سامنے رسوا کر کے نہیں۔ زنجبیل نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ڈنکی کی چوٹ پر لے کے گیا ہوں اسے، تمہاری طرح شادی کر کے کسی گناہ کی طرح چھپایا نہیں ہے۔ ارے تم نے تو اپنی بیوی کی حیثیت دینا اور اسے نوکرانی کا درجہ دے دیا۔ تم بات کرو گے عزت کی؟ زہرا کو اندر لے کر آتے دستگیر افریدی اور فاطمہ کے پاؤں زمین میں جگڑے تھے اسکان حیدر کی بات پر۔ میں اپنے دل سے، اپنے دماغ کی رگوں سے رسنے والے ایک ایک زخم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دوستی دنیا کا سب سے بھیانک رشتہ ہے۔ اگر ذہنی حالت مفلوج ہونے کا سب سے بڑا سبب ٹٹولا جائے تو میں چلا کر کہوں گا، دوست مت بنانا کسی کو۔ اگر بنا بھی لو تو اسے اپنی کمزوریاں مت بتانا، اسے دوست ہی رہنے دینا، اپنا باپ مت سمجھنے لگنا، ورنہ ایک وقت آئے گا جب وہ سانپ بن کر ایسا ڈسے گا عمر بھر سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اور اب میں چاہتا ہوں ایسے سانپ کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں انہیں کبھی احساس نہ ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ معافی بھی نہ مانگے۔ میرے ذہنی حالت تباہ کرنے والی میری قبر سے بھی دور رہے۔ ان کے جھوٹے آنسو میری قبر کی مٹی پر گر کر مجھے مرنے کے بعد بھی اذیت دیں گے۔ میں چاہتا تھا کبھی بھی کسی صورت وہ میرے سامنے نہ آئے۔ زنجبیل۔ زہرا کا ستر ٹوٹا تھا، تبھی لہستی آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے
उछले थे। क्या कह रहा है ये? ज़हरा बेयकीनी की कैफियत में उसे देख रही थी। उसकार ने तंज़ी अंदाज में उसे देखा था और तभी आवाज़ों के शोर से घबराती ज़ंजबील के कमरे से बाहर निकली थी। ये सब इतना हसाती था कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। जरलिश की सांस रुकी थी ज़हरा को सामने पाके। वो तो एक हफ्ते वहाँ रहने वाली थी। ज़ंजबील, कुछ पूछा है मैंने? ये लड़की कौन है? ये लड़की किस हैसियत से तुम्हारे कमरे में थी? बताओ। मेरी गैर मौजूदगी में क्या फाश खाना खोल लिया तुमने? हमेशा असूलों की पाबंद ज़हरा के लिए ये बात काबिले कबूल ही नहीं थी कि ज़रलिश जैसी मिडिल तबके की लड़की इनकी बहू थी, पर असगार का नौकरानी के हवाले दिए जाने वाला तारा और अब ज़रलिश का जबील के कमरे से बाहर आना कई सवाल उठा रहा था। तभी वो तल्ख हुई थी। बोलो ज़ंजबील आपा, कुछ पूछ रही है? दस्तगीर भी आगे बढ़े थे। बताओ सबको ज़ंजबील अफरीदी, हटाओ अपने चेहरे से मुनाफत का मुखड़ा कि तुम कभी ज़ाले अफरीदी से शादी ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि तुम्हारा दिल तो वही कहीं पहाड़ों में अटका था। बताओ सबको क्या सच है? क्या तुमने नहीं प्रॉमिस किया था कि मेरे आते ही तुम ये बगरी खत्म कर दोगे, क्योंकि तुम जानते थे कि अजाला से मैं मोहब्बत करता हूँ। फिर भी तुम बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाए इस कड़वी हकीकत को तस्लीम किए बैठे थे। अगर मैं ये सब ना करता तुम अजाले को दूसरी बीवी बना के घर ले आते। उसगार को गोया मौका मुयसर आया था अपनी बात क्लियर करने का। ज़हरा का बाकी बात वजूद भी जमीन पर ढेर हुआ था। मॉम, वो इनकी तरफ लपका था जब उन्होंने हाथ से इशारा करते उसे आगे आने से रोका था। एक नफरत भरी निगाह ज़ालिश पर डालते वो दस्तगीर के सहारे अपने कमरे में चली गई थी। इनके शफात काफी जानलेवा थे। दस्तगीर के लिए ज़ाले के हवाले से दूसरी बीवी का तस्वर ही मुहाल था। ऐसा तो सब ने लॉन्च खाली कर दिया था, जहाँ सिर्फ वो दो रह गए थे। ज़ंजबील ने इसकी तरफ देखा था। ज़ालिश का दिल हलक से बाहर आने लगा था। वो चाहता तो अपनी सफाई में बहुत कुछ बोल सकता था, पर उसने चुप इख्तियार की थी। इसलिए वो आज भी उसे सरखुरू कर रहा था ताकि इसकी जात किसी तरह ना रगड़ी जाए। एक इसकी गलती ने कैसे इस शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दी थी जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा था। वो दिल शख्सा सा बैठा था। आखिर हमेशा वही क्यों गलत दिखाया जाता था? उसे लग रहा था वो एक बार फिर खुले आसमान के नीचे नंगे पांव अंगारों पर चलने लगा है। मुख्तलिफ लोगों के फिक्रे किसने की आवाजें ज़ंजबील के कानों से लहू टपकाने लगी थी। एक बार वो फिर से गुनहगार ठहराया गया था। इसकी आंखों में माजी की कुछ किरचियां चुभने लगी थी। उस दिन पूरी वादी बारिश से जल थल हुई थी और इसने बासत शौक वो बहलूल अपने अंदर उतारते कुछ देर को खुद डिप्रेशन से निकलना चाहा था। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो कमरे में गूंजती मदद सिसकियों पे वो भारी सा लिए उठ बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेड पर बैठी ज़ालिश ने ज़ंजबील को नागवारी का शिकार किया था। ज़ंजबील, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो आखिर? वो जज्बाती होती इसके सीने पे सर अटका गई थी। मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, तो मैं इसलिए बात नहीं कर रहा। ज़ंजबील ने चटक कर कहा था। वो उसे दुख भरी निगाहों से देखने लगी। मेरा कसूर सारे मेरे हैं कि मैंने एक मामूली सी लड़की को अपने सर पर बिठा लिया। प्लीज ज़रलिश, जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मत आना। वो एक हाथ कमर पर रखते दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे करते बोला था। पेशानी पसीने से शरबूर थी। हबस बढ़ रहा था। बारिश की वजह से उसने रूम एसी ऑन नहीं किया था। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर तुम वादा करो तुम पहाड़ी पे मिलने आओगे मुझे। वो पुर उम्मीद नजरों से उसे देखते बोली थी। देखो ज़रलिश, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और बेहतर यही है जैसे वादी के बाकी सब बच्चे अपने घरों में हंसते खेलते हैं, तुम भी इन सब की तरह रहो। ज़ंजबील को समझ नहीं आ रही थी वो उसे कैसे डिसहार्ट करे कि वो यहाँ का रुख ना करे दोबारा। मैं बच्ची नहीं हूँ ज़ंजबील, वो इसके बच्चे कहने पर चीखी थी। मेरे लिए हो, हाँ, ये और बात है कि एक नंबर का बिगड़ा हुआ झूठा बच्चा। वो दांत पीसते बोला था। मैं झूठी नहीं हूँ ज़ंजबील, वो इसके सामने आती सफाई देती बोली थी। ओह बस, तुम बिल्कुल झूठी नहीं हो। तभी पहले दिन से मुझे पशमाना के नाम पर हजारों झूठ बोले। वो कुर्सी पे जाकर बैठा था, पाँव इस तराजी कैफियत में हिल रहे थे। ज़ंजबील,
وہ آگے بڑھی تھی پر زنجبیل نے اٹھتے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ زرلش کے چہرے پر افسردگی چھائی تھی، تبھی وہ بھاگتے اس کے گلے لگی تھی۔ میرے ساتھ ایسے مت کرو زنجبیل، میرے سے ناراض مت رہو، میں نے وہ صرف اس لیے بولا تھا کہ تمہیں میری باتیں نہیں سننی تھی۔ ارسلان، پشمانہ کی باتیں تمہیں اچھی لگتی تھی تو بس۔ زنجبیل نے اسے پیچھے کیا تھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ خود ہی نو عمر لڑکیوں کی طرح خواب پر رونے لگا تھا۔ زنجبیل، اگر تم ایسے کرو گے سچ میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ول شٹ یو ٹو مچ اسٹوپڈ۔ زنجبیل، میں سچ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اب کہ زنجبیل بری طرح سے چونکا تھا، اس کے لفظوں سے نہیں اس کے انداز سے۔ آر یو میڈ زرلش؟ فار می یو آر جسٹ آ چائلڈ۔ وہ اس کی انگلش بولنے پہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زرلش، میرے لیے تم بچی ہو، اوکے؟ اگر کچھ انٹینشنز میں نے تمہارے ساتھ بچہ بن جایا کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فضول چیزیں اپنے دماغ میں گھساؤ۔ زنجبیل سچ میں گڑبڑایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ تمہیں ہمیشہ اس وادی میں میرے ساتھ رہنا ہے، تم واپس نہیں جاؤ گے، اور اگر جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ اس کی اگلی بات سچ میں اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ آر یو سک؟ گو ناؤ می ربش۔ زنجبیل نے اسے بازو سے پکڑے باہر کیا تھا اور دروازہ بند کرتے کتنی دیر وہ زرلش کی بھٹکی روح پر حیران سا بیٹھا تھا۔ جب دھڑا دھڑ دروازہ کھٹکایا گیا تھا، اس نے دروازہ کھولا مگر سامنے موجود گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کر چھٹکی نگاہ اس پہ ڈالی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ گاؤں کا کوئی شخص سوائے ملازموں کے اس طرح کا رخ کرے۔ جی، اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تم نے گاؤں کی بچی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہاں ہم تمہارے کام کو لے کر خوش ہیں اور تم نے جانے بھانت کے لوگ کیا بولیاں بول رہے تھے۔ زنجبیل ایک کو اپنی صفائی دے رہا تھا جب اس کی نگاہ زرلش کی طرف اٹھی۔ اس کا پھٹا لباس زنجبیل کا دماغ چکرا گیا تھا۔ زرلش، کیا ہوا ہے یہ؟ زنجبیل نے اسے اشاروں سے تھاما تھا، تبھی چند جیسے وہ لوگوں کے نشانے پہ آیا تھا۔ وادی کے گدی نشینوں نے جرگہ بلایا جہاں اس کے ساتھ پروجیکٹ میں شامل لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ لوگوں نے باقاعدہ ڈیم کی کنسٹرکشن کا کام رکوا دیا۔ حالات اچانک سے دوسری نہج پر جانے لگے تھے۔ تبھی آفیسر نے اپنا زیر خصوص دکھاتے اس بات کو دباتے زنجبیل کو ان لوگوں کے حوالے کیا تھا کیونکہ ان کا مجرم وہی تھا، اور تب زنجبیل کے سر جیسے بلاسٹ ہوا تھا۔ زرلش نے اس پر زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے زرلش، تم نہیں بتاؤ گی کچھ؟ یہ جھوٹ ہم دونوں کی زندگی برباد کر دے گا۔ تم سمجھ رہی ہو کچھ؟ گاؤں کی روایت سے نابالغ زنجبیل افریدی کے لیے وہ ایک بچی تھی جس سے اسے منسوب کیا جا رہا تھا۔ ارے میں نے خود تمہارے چوکیدار کو بتایا۔ بتاؤ کاکا، ایک ادھڑ عمر شخص نے کہا تو چوکیدار کی زبان فراٹے بھرنے لگی تھی۔ تب زرلش نے بھی منوعر سر ہلاتے ان الزامات کی تصدیق کی تھی کہ زنجبیل اسے زبردستی وہاں سے لے کے گیا تھا، اور اس سے آگے جو تھا بے یقینی کا سفر تھا۔ فور گاڈ سیک، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسانے کی سازش۔ زرلش، تم ٹھیک ہے، مان لیا یہ سازش ہے، تم بے گناہ ہو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، تم خود کو سچا کیسے ثابت کرو گے؟ جرگے کے ایک سربراہ نے اس کے احتجاج پر کان دھرے تھے۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ چوکیدار اور لڑکی سچ بول رہے ہیں؟ بھلا ایک لڑکی خود پر الزام کیوں لگائے گی؟ اور گاؤں کے اکثر لوگوں نے ہی تمہیں اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ کمسن اور نادان ہے، تم نہیں۔ اور یہیں پہ آ کے زنجبیل کی سمجھ بوجھ جواب دے گئی تھی۔ یہی تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا زرلش جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ زری، آج پھر تم نے جھوٹ بولا، اور تم جانتی ہو اس جھوٹ سے زنجبیل کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کی نوکری جا رہی ہے اور کاکا تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ پشمانہ اس پر چیخ چلا رہی تھی، وہ ایک ماں کی طرح اسے پال رہی تھی۔ مستی مذاق کی حد تک اس کا جھوٹ چل رہا تھا، پر اب حد ہو چکی تھی۔ پشمانہ، وہ جا رہا تھا، اس کی آواز گلوگیر ہوئی، تو اسے جانا ہی تھا زری، وہ ہم لوگوں جیسا نہیں ہے، وہ یہاں کا نہیں ہے، کچھ دن کا مسافر تھا، اپنے کام سے آیا تھا اور کام مکمل ہوتی ہی چلا جانا تھا۔
जरी यहाँ कितने लोग आते हैं डैम के लिए और फिर क्या होता है, कुछ दिन रहकर चले जाते हैं। वो भी इन जैसा ही था। पिशमाना उसे रसानियत से समझाने लगी थी, नहीं पिशमाना, वो इन जैसा नहीं है। उसने कहा था वो यहाँ मेरे लिए आया है। जल्लिश की बात सुनते वो भुंचुची रह गई थी। जितना उसने अरसलान के जरिए जंजीबील को जाना था, उसने यकीनन किसी बात पे जल्लिश का दिल रखने को ये बोला होगा। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो यहाँ रहेगा हमेशा। मेरे पास उसे रोकने को कोई रास्ता नहीं था। तभी जल्लिश की बात पिशमाना के थप्पड़ ने पूरी ही नहीं होने दी थी। जरी निकल आओ अपनी बेवकूफ़ी की दुनिया से, इसलिए मकसद तुम एक बच्ची हो। वो सर पकड़ कर बैठी थी। नहीं हूँ मैं बच्ची, उसे यही रहना है इन्हीं पहाड़ों में मेरे साथ। जल्लिश ने जिद्दी बच्ची की बात कहते साथ ही दरवाजा इसके मुंह पर बंद किया था। पिशमाना दंग सी रह गई थी। गांव वालों ने जंजीबील का फैसला काका के आने पर छोड़ दिया था। असरान, क्या हम एक बार जंजीबील से बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है, दरअसल मुझे यही लगता है उसे जाने बूझ के फंसाया जा रहा है और जरी ही उसे बदनाम कर रही है, जिस बात का उसे अंदाजा ही नहीं है। पिशमाना के अंदाज में बेचैनी ही सी घुली थी। इसने कभी जंजीबील को देखा नहीं था, बात नहीं की थी, पर जितना वो जान सकी थी वो सेंसेबल इंसान लगा था। तभी वो अरसलान के सामने आ बैठी। वो अपने घर में मेहमान है और कोई भी उसे बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि वो सब उसे गुनहगार समझते हैं। अरसलान भी जल्लिश के तेवर देखकर बैठा था। तो फिर क्या फैसला किया है गांव वालों ने? चिरबेली, जंजीबील को चिरबेली पूरी करनी पड़ेगी। अरसलान की बात पे जल्लिश की आंखों में तहरीर भरा था, तो वही पिशमाना की भी सांस रुकी। वो शहरी लड़का भला कैसे? वो गुमसुम हुई थी। दरवाजे की ओर से झांकती जल्लिश के आंसू की झड़ी लगी थी। भला जिनसे मोहब्बत की जाती है इन्हें तकलीफ में कौन देख सकता है? अरसलान, वो मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, ये सब होने से बचा लो। जल्लिश की बात पे इन दोनों ने सर उठाए उसे देखा था। तुम्हारा बोया तो उसे ही काटना है। अरसलान ने हाथ में पकड़ी लकड़ी जोर से जमीन पे मारी थी। अरसलान, वो बेगुनाह है, उसका कोई जुर्म नहीं है, तो वो क्यों अंगारों पर चले? वो इसका हाथ थामे मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। इसका कसूर है कि इसने खुद से कई गुना छोटी लड़की को सर पर बिठा के रखा। वो इस्तदार पागल है कि उस बच्ची के बिगड़ते तीवर नहीं देख पाया। पिशमाना ने उसे खरी खरी सुनाई तो वो सुन सी होकर रह गई। कुछ देर बाद वो दोनों ही चले गए तो जल्लिश की निगाहें चूल्हे पर जलती लकड़ियों पर गई थी। तस्वर की आंख से वो जंजीबील को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चरबीली की रस्म की भेंट चढ़ते देखकर दहल उठी थी। उधर जंजीबील के इल्म में जब ये बात आई कि लोग उसे सच्चा साबित करने के लिए अंगारों पर चलाने वाले हैं, वो इस अजीब मुंतफी पर बिलबिला उठा था। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कहीं नहीं होता। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ तो तुम लोगों को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? वो इन लोगों पे चिल्ला उठा था। तो तुम अगर बेगुनाह साबित हो गए तो वो लड़की अंगारों पर चलेगी, कोई एक तो झूठा साबित होगा। जंजीबील सच में चकरा कर रह गया था। सोच में जल्लिश को नंगे पांव देखते वो बिलबिला उठा था। और फिर जरगे के सामने भी उसने इनकी अजीबो गरीब मुंतकी से इख्तलाफ उठाया तो लोग जज्बाती होते इस पर पत्थर बरसाने को तैयार नजर आ रहे थे। इस सब का एक ही हल है, या तो गांव के लोग तुम्हें जिंदा गाड़ दे या फिर तुम इस लड़की से शादी करोगे। सामने मौजूद लोगों की बात सुनते वो शौक हुआ था। इसकी लाख दलीलें भी काम नहीं आई थी। इसके सिवा पास बसवाए सर झुकाने के कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता भी मुख्फिल था और फिर उसे जल्लिश को अपनाना पड़ा था। वो कितनी बेयकीन सी थी और पिशमाना शर्मिंदा सी इसके पास चली आई थी। मैंने उसे बड़ी बहन और माँ बन के पाला है। जंजीबील, हो सके तो उसकी गलती दरगुजर करना। वो नासमझ है, वक्त के साथ साथ उसे बहुत कुछ समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। खुद को और तुम्हें यूं सबके सामने रस्वा करके जिनसे इज्जत का रिश्ता ना बन सके, इनसे मोहब्बत की दावादारी मखसूस एक दिखावा है या ज़हनी तस्कीन, उसे समझना बहुत मुश्किल है। जंजीबील बुरी तरह से चौंका था। तो क्या वो यकीन रखती थी कि जल्लिश
जल्लिश इसने झूठ बोला है। पिशवारा जैसे इसका चेहरा पड़ने लगी थी। शायद उसने जिंदगी में पहला सच बोला है और शायद वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। पिशवारा की मोहब्बत बात पर वो चुप ही तो रह गया था। जिंदगी एक बंजधारण बनकर रह गई। इन गुजरे दिनों में वो जल्लिश की हमाकतों से मोहब्बत और नफरत बरत के देख चुका था, मगर इसका सुकून कहीं खो सा गया था। उसे जाले को खोने का गम कभी लाक नहीं था, क्योंकि उसने कभी जाले के लिए दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं पाया था। और जल्लिश, वो भी तो जाले जितनी हसीयत की हामिल थी, पर अब इसका दिल गलती कर बैठा था। वो 1.5 फुट लड़की इसकी पूरी जिंदगी में तलातल बर्पा कर चुकी थी। वो गहरी सांस भरते माजी से हाल में लौटा, जहाँ एक अटल हकीकत सामने थी। मुझे माफ कर दो ज़ंजीबिल, मैं हमेशा तुम्हारी तकलीफों की वजह बनी हूँ। मैंने शायद कुदरत के फैसलों से लड़ने की कोशिश की थी और हार गई। जल्लिश की आवाज उसे तकलीफ दे माजी से निकाल लाई थी। हाल भी कुछ खास नहीं था, वही बेसुरो समारी की हालत थी। जल्लिश कुछ देर इसके बोलने का इंतजार करने लगी थी, फिर सामने वाला बोलना भूल चुका था। ज़ंजीबिल, तुम वापस चली जाओ। बिना उसकी तरफ देखे ज़ंजीबिल ने कहा था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि अपनी माँ के दिमाग को उसने ठेस पहुंचाई है। कितनी देर वो गैब दिमागी से इस शीशे पेज में मुतलबा रहने के बाद वहां से चली गई थी। कभी कभी इंसान अपनी जान से इस हद तक बेजार हो जाता है कि दिल करता है किसी कोने में बैठकर खुद के सामने ही हाथ जोड़ लिए जाए। ऐसी ही इस वक्त जमील का हाल था, जिसने रूम में आते ही खुद को मुकीद कर लिया था। दूसरी तरफ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद पर तरस खाए या हालात से दिल गिरफ्तार होते वहां से चली जाए। आज उसने पहली बार वो संदूक खोला जो पिशवारा ने इसके हाथ थमाया था। वो छोटा सा संदूक का जिसमें इसकी माँ के गहरे जेवर मौजूद थे। इनमें से चंद एक जेवर निकालते उसने चौकीदार को थमाए थे कि वो इन्हें इमारत समझते रख ले। फिलहाल उसे कुछ पैसे चाहिए थे जो इसके गांव लौट जाने में मददगार साबित होते। चौकीदार कुछ उलझन का शिकार था, मगर जेब में जितना था इसके हाथ रखा तो वो एक नजर इन ऊंची दीवारों को देखने लगी, जहाँ इज्जत महफूज ना थी और ना ही रिश्तों की कदर इन आरजी चकाचौंध रोशनियों में कहीं गुम हो चुकी थी। वो ज़ंजीबिल अफरीदी की अपनी तरफ से आजाद करते वहां से निकलती गई थी। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस शख्स ने उसे रात भर अपनी कीमती मता की तरह अपने पहलू पर महफूज रखा था, उसने किस जहरी अबतर हालत में इस पे अपना गुस्सा निकाला था। मोहब्बत की आँच इतनी पास होकर भी महसूस नहीं कर पाई थी वो। पिशवारा जी, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने में मदद दे दे। मेरी मामा पापा बहुत परेशान हो गए मेरे लिए। मरहा इसके घुटनों पर हाथ रखे मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। पिशवारा की आंखों के सामने जल्लिश का चेहरा घूमा था। तो क्या तुम यहाँ से जाने के बाद अरसलान के बारे में पुलिस या अपने घर वालों को नहीं बताओगी? पिशवारा ने कुछ मुहतात अंदाज में पूछा था। मरहा को चुप लगी थी। भला ये कैसे मुमकिन था कि वो किसी को कुछ ना बताती। रात गए अरसलान को पिशवारा ने इस मामले की बाकत कहा तो वो बिल्कुल इनकार कर गया था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो हम इसका क्या करेंगे अरसलान? क्या सारी जिंदगी उसे कैद रखोगे तुम? जल्लिश की तरह बेवकूफियां करना तुम्हारा शेवा बन गया है। एक बार पूछताछ ही कर लेते। कुछ ऐसी ही एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो यहाँ कब से है? हमारे यहाँ एक रात क्या चंद घंटे लड़की गायब हो, पूरा कबीला इसका जनाजा निकालने पर बैठा होता है और वो पता नहीं इसके घर वाले भी उसे अपनाएंगे या नहीं। पिशवारा एक लड़की थी, तभी वो इसके दिल में हमदर्दी महसूस कर रही थी। ज़ंजीबिल ने भी तो जल्लिश की इज्जत के लिए उससे निकाह किया था। मैं भी इस लड़की से निकाह करके उसे महफूज रख सकता हूँ। अरसलान की बात में पश्मीना को इसके दिमाग खराब होने का यकीन हुआ था। तुम पागल हो चुके हो? नहीं, मैंने तुम्हें वजह दी है इस लड़की को अपने पास रखने की, और अगर तुम्हें गवारा नहीं है तो फिर जिसे जो चल रहा है चलने दो। अरसलान ने गोया बात खत्म की। चल रहा है अरसलान, कल को काका जी आ जाएंगे तो क्या बताओगे तुम इन्हें? कौन है ये लड़की? एक बार फिर से इस घर से जनाजा उठना है। तुमने जरी के बाद वो तुम्हें भी मुंह नहीं लगाएंगे। पिशवारा की आवाज भराई थी। अरसलान खुद को
खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जंजील से मदद लूं? अरसलान ने सवालिया निगाहों से पशमाना को देखते हुए कहा था। हाँ, मगर दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे इनकी बात दरमियान में रह गई थी। अरसलान ने आगे बढ़ते दरवाजा खोला तो जैसे सत्ता हुआ था। सामने ही काफले के लिए सवार जैसी जर्लिश खड़ी थी। जरी अगरचे इसकी आवाज बुलंद ना थी, मगर इसके पीछे आधी पिशवारा भागते कदमों से वहां पहुंची थी। जरी तुम आ गई, किसके साथ आई हो? क्या जंजील आया है? और पिशवारा, मैं बहुत थक गई हूँ। मोहम्मद को खोजने का सफर आमला पाई का था। तुमने कभी इस दुख से आशना ही नहीं होने दिया। जल्लिश की आवाज में टूटी चूड़ियों का शोर बरपा था। जरी वो जो आगे बढ़ते उसे थामना चाहती थी, उसे जमीन बोस होते देख चीख उठी थी। अरसलान ने भी आगे बढ़ते उसे गोद में उठाया और उसे उठाए चारपाई तक लाया था। वो अपने जहरी करम से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंची थी, जिसका नतीजा यही निकला था। बड़ा हैरानगी से अपने सामने लेटी इस कली को देख रही थी, जो उसे अपनी हम उम्र लग रही थी। तो क्या वही जरी थी? वो उलझी सी अरसलान और पिशवारा के चेहरे देख रही थी, जो उसे होश में लाने की तकदो कर रहे थे। ये बरहा के इशारे पर अरसलान मुतवज्जो हुआ था। ये मेरी बहन है, जंजील अफरीदी की बीवी। उसकी अंदाज पर वो ठटकी थी। जरी, मेरी बहन, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, उठ के बैठो। पिशवारा उसे होश में आते देखकर इसका चेहरा थामे बोली थी। अरसलान भी धूप साधे उसे देखने लगा था। इसका जैसे थी इतने दिनों का जब्त टूटा था। वो पिशवारा गुल के गले लगते ही फुट फुट कर रो दी थी। पिशवारा ने भी उसे दिल का गुबार निकालने दिया था। जब जी हल्का हुआ तो इनकी निगाह दौड़ाई सकून किया था। यही डर में जिसमें इसका दम घुटता था कभी, और निगाह बरहा पर अटकी थी, जिसके नकूश कुछ जाने पहचाने से थे, और उसने जल्लिश का ही लिबास पहना हुआ था। ये कौन है? पिशवारा। वो इन दोनों को सवालिया नजरों से देखते बोली थी। अब अरसलान और पिशवारा के चेहरे से हवाइयां उड़ी थी। मैं बरहा हूँ, बरहा हैदर, औजार हैदर की बहन। मजबूत लहजे में बोलती वो लड़की वाकई औजार हैदर की बहन थी। जल्लिश पूरी तरह से चकरा उठी थी। ये यहाँ क्या कर रही है? जल्लिश को याद आया था कैसे इस लड़की की वजह से भूचाल आया था। जंजील का शर्मिंदा अंदाज, औजार हैदर की तस्दीक भरे जुमले, फिर कुछ भी भुलाए जाने वाला नहीं था। जरी सब्र रखो, हमें सब कुछ बता देंगे तुम्हें, मगर तुम क्या बताओगी? पिशवारा, जानती है इस लड़की के भाई की वजह से जंजील को कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है। आज तुम निकालो उसे यहाँ से। उस पे तो चजूजियत सी तारी थी। जिस शख्स को वो खुद छोड़कर आई थी, इसकी इज्जत को बहुत जद खुद किया था, आज इसकी इज्जत पर 2 बार हरफ उठा तो तड़प उठी थी। जरी पागल मत बनो। पिशवारा ने बरहा को अपने पल्लू में छुपाया था। पिशवारा, वो हैरत की ज्यादती से चिल्ला उठी थी। इसका इब्नोर्मल रवैया परेशान किस्सा था। अरसलान उसे कितनी देर समझाते बुझाते अपनी गलती का इतराफ कर गया, तो जल्लिश के जज्बात बरहा के लिए हमदर्दी में बदले थे। वाकई इसका तो कोई कसूर नहीं था। तुम उसे घर भेज दो। सलार, वो जंजील पे शक कर रहे हैं, कहीं उसका जंजील को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। असलान इसके बेचैन अंदाज पे चौंका था। इस पहलू पे तो किसी ने सोचा ही नहीं था। जल्लिश का यूं आना एक फैसला की ईंट साबित हुई थी। तभी हर इंजाम से आ रही होते असलान बरहा को वापस शहर छोड़ने चली गई, पर कहा तुमने ऐसे कैसे जाने क्यों दिया? वो चौकीदार की क्लास ले रहा था। 2 दिन बाद जो रैक्सी में गया तो खाली रैक्सी मुंह चढ़ा रही थी। साहब, वो कह रही थी कि इन्हें जल्दी अपने गांव जाना है। कुछ पैसे चाहिए थे जो इन गहनों को गिरवी रखवाते उन्होंने मुझसे लिए हैं। चौकीदार को इस खतरनाक तीवर जबान खोलने पर मजबूर कर गए थे। कौन से गहरे? इसकी तीव्रियत पर बल पड़े तो चौकीदार ने उसे जल्लिश के थमाए वो डब्बा ला दिए। कितने पैसे दिए थे उसे? वो वॉलेट अपनी जेब से निकालते हुए बोला था। चौकीदार की बोली गई रकम जंजील को मजीद टेंशन में डाल गई थी। वो शहर कब आई थी पहले कभी, और उसे भला क्या मालूम होना था रास्तों का? वो तफकर ज्यादा सा वो डब्बा उठाए फिर से रैक्सी
मैं आया था कि शायद कोई क्लू मिल जाए। सामने ही स्टैंड पे पड़ी चूड़ियां जंजीबील का दिल मुट्ठी में करने लगी थी। उसे कितना शौक था चूड़ियों का जो उसने कभी पूरा नहीं किया था। उसे याद था वो अरसलान और पिशवाना से मिलने के बाद ये डब्बा साथ लाई थी। जब मोबाइल पर होती रिंग ने उसे चौंकाया था, जहां अरसलान का नाम जगमगा रहा था। क्या वो वापस गांव चली गई है? जंजीबील ने खुद कलामी अंदाज में कहा था। सेल फिर से बज उठा था। इसके हेलो के जवाब में अरसलान ने उससे मिलने का कहा था। जंजीबील को थोड़ी हैरत जरूर हुई थी। अरसलान का अंदाज उसे कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था, फिर भी वो हामी भरते उसे मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में बुलाया था। मतलूबा वक्त पर वहां पहुंचते उसे बरहा के सबराहत देखते वो अच्छा खासा शॉक्ड हुआ था। असलान, ये बरहा तुम्हारे साथ क्यों है? उसका अंदाज खुद ब खुद सख्ती इख्तियार कर गया था, वो एक गलत फहमी के नतीजे में। असलान ने धीमी आवाज में अपने जुर्म का इतराफ किया तो बरहा के आंसू और अरसलान की पेशमान कथा पर वो मुचला कर रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करे। बरहा कितने दिन अरसलान के पास रहकर आई थी, ऐसे में इसकी गैर मौजूदगी पहले ही जंजीबील को मशकूक ठहरा गई थी। फिर से पलटी हुई बाजी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो पहाड़ी के मासूम लोग जिनके सामने कभी कुछ क्लियर था ही कब जो असरा गलत फहमी का शिकार रहा होता। एक और मुश्किल इसके सर आ खड़ी हुई थी, पर ये सब इसकी वजह से हुआ था, उसे ही ठीक करना था। वो हैदर नगर पहुंचा तो इसके साथ बरहा को देखते सब लोग ही शॉक्ड थे। ये सिला दिया तुमने हमें बेटा कहने का कि हमारी ही इज्जत पर हाथ डाला। हैदर साहब का हाथ इसके गिरबान में पड़ा तो बरहा जैसे तड़प कर रह गई थी। बाबा, जंजील भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं खुद घर छोड़कर गई थी दारोबार में। वो तो मुझे दोबारा इस घर में आने के लिए बना कर लाए है। मुझे ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना जो दूसरों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। बरहा ने ढके छुपे लफ्ज में सारा मलबा अपनी और उस गार हैदर की जात पर गिराया तो वो गिड़बड़ा गया था। ये क्या कह रही हो तुम बरहा? अगर ये शख्स तुम्हें धमका रहा है तो मैं उसे फॉर गॉड सेक भाई, मैंने कहा ना मैं अपनी मर्जी से गई थी। अब अगर एक बार भी आप लोगों ने जंजीबील भाई की जात को मुजरिम ठहराने की कोशिश की तो अब शायद आप लोगों को मेरा मरा हुआ मुंह देखने को मिले। वो गुस्से में चिल्लाती अपने रूम में बंद हो गई तो दरख्शां भी होश में आई थी और इसके पीछे लपकी। जंजीबील बिना कुछ बोले वहां से निकल आया था। कुछ वक्त पहले एक छोटी सी लड़की ने उसे सरेराह बदनाम किया था और आज एक और छोटी सी लड़की इसके किरदार की सारी भरकर आई थी। इस उलझी जिंदगी के सुलझे हुए बाकायदे बड़े दर्द अमेज थे। बरहा की जुबानी से मालूम पड़ा था जल्लिश गांव में ही थी। एक भूला भटका अपने आशारे पे जहाँ पहुंचा था तो जंजीबील अफरीदी शायद अब यकसुई से अपनी जिंदगी के फैसले ले पाता। सफर का पैमाना यही था कि इसका दिल जल रहा था मगर उसे सब खामोश रहते सहना पड़ रहा था। एक थका देने वाला वीक गुजरने के बाद वो इसके पास आया था, जो साहिल पर बैठी मोहब्बत सी लहरों के रक्स को देख रही थी, जो इसके पाँव को छूते कुछ जरे मिट्टी के भी सरका के ले जाते थे। वो लहरें इसके शौक को मजीद हवा दे रही थी, जो समुद्र की वस्तु में जाती ही गुम हो जाती। वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई? अपने साथ कितने के दिलकश मनाजिर ले गई। शायद ही किसी को फर्क पड़ता, लेकिन उसे जरूर पड़ता था। वो इन लहरों के रास पाने को रफ्ता रफ्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। एक सरसरी निगाह क़यामत बर्पा करने के दर पर थी जो इसकी जानिब उठी थी और लम्हों की देरी किए बगैर ही वो उससे खींचते हुए अपने साथ लगा गया था। आलम में बेखुदी में बढ़ती अजाले ने सेकंड में शऊर की मंजिलें तय की थी और दूसरी लम्हे जराटेदार थप्पड़ की गूंज भी इन लहरों की जैसे पशीदा हो गई थी। तो सुसाइड करने लगी थी। सदमे से पूरा आवाज पे वो भी चौंकी थी। आर यू गोन नाउ? गुनामेड, मैं क्यों सुसाइड करूंगी? मैं तो इन लहरों के साथ मुझसे रक्स होना चाहती थी। वो एक बार फिर से समुद्र को देखती आलम जज्बे में बोली थी। उस गाने सर था पैर इसका जायजा लिया जो कहीं से भी उसे नॉर्मल नहीं लग रही थी।
आइंदा तो मुझे साहिल पे नजर ना आओ। वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा था जब जाले ने उससे अपना बाजू छुड़ाया। तुम्हें क्या मैं जीऊं मरूं, क्यों आए हो अब तुम यहाँ? जब अकेले यहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे मुझे तो नरहुटे सा अंदाज था। अस्कार हैदर के लबों पर मुस्कुराहट खिल गया। उसने लम्हों में वो फासला ना पा था और उसके करीब हुआ था। इर्द गिर्द नीलों आसमान ने शोर बर्पा किया था पर उसे होश कहाँ था। इस एक हफ्ते में इसका कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब उसने अजाले अफरीदी को ना सोचा हो। निकाह करती ऐसा इसका यूं चले जाना आबे हयात छोड़ने के मुताबिक लगा था। जाले इसकी आंखों में मचलते जज्बात की तगजीरी से बचने को पीछे होना चाहती थी, मगर वो लम्हा जैसे थम सा गया था। उसगार ने इसके कानों से बाल हटाते होले से सोने की बालियों को छुआ था। ऐ वक्त हाजिर की हसीन साख तुम मेरे हसासात की डोर से बंधी वो घड़ी हो जिसके संग मैं पहरों अपनी मोहब्बत निछावर करता हूँ। तुम मेरी रूह पर एक अनमोल पल की तरह दर्ज हो। तुम्हारी आंखों में झांक लेना ऐसी ही है जैसे कायनात को देख लेना। उसगार हैदर की जज्बात में रींगी बोझल आवाज और गरम सांसें जाले के जिस्म में सुनसनी सी दौड़ा गई थी। हिरनी जैसी आंखों में हलोरे लेता खौफ उसगार के जज्बात शोले भड़का रहा था। उसने जाले के हाथ थामे चूमे थे गच्चा, जबकि एक शिकंजा सा इसकी कमर के गिर्द बांधने लगा था। उसके लब कानों की लू को छूते इसकी गर्दन पर जमे थे। जाले ने सख्ती से आंखें मीच ली। तुम्हारे संगे मरमर से वजूद को छू लेने से ये जलता हुआ दिल, सुलगता हुआ बदन, राहत व इकरार की दिल फरेब हदूद को छूने लगता है। तुम्हारे गुलाबी मुलायम जिस्म में कहरे अर्ज की सबसे हसीन व जमील तख्लीकों में से एक तख्लीक है और मेरे नज़दीक इस जहां की सबसे दिलकश तख्लीक है। उसने हद से गुजरने की सलाह करते हुए उसे एक झटके से उठाया था और घर की जानिब बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड के सामने से अपना वजूद यूं उठा के ले जाना बेतरह शर्मिंदा कर गया था, मगर उसगार को जरा भी किसी की परवाह नहीं थी। वो जैसे ही उसे अपने रूम में लाया अजालत पिटाई थी। वो भूल कैसे सकती थी कि वो इस पर मुकम्मल इख्तियार रखता था। ऐ रूहे कलब की धक धक, तुम अर्ज़े व समात का एक लाजवाल शिकार हो। उसगार ने उसे कांच की नफासत जैसे बिस्तर पर लिटाया था और खुद भी कुछ बैठने और लेटने वाले हालत में इसके बिल्कुल करीब बैठा था। अजाले की आंखों से गर्म स्याह रवा हुआ तो उसगार ने उससे आंखों के गोशों में चुन लिया था और इस पर झुकते इसके चेहरे पर अपने लफ्ज से बहकते जा बजा बूसे देने लगा था। अजाले की धड़कनें बार बार शोर मचाते बेतरतीब हो रही थी। वो भी इस शोर से आशरा था। तभी एक हाथ इसके सीने पे रखी जैसे इन धड़कनों को करार देने की सलाह की थी। वो तड़प ही तो उठी थी। मुझे ये सब तुमसे नहीं चाहिए उसगार हैदर, कमरे में बोलते मेरी खेज लम्हात साख्त हुए थे। अजाले उसे धुतकार देती तो शायद इतना दर्द महसूस ना होता जो इसके यूं जताने पर हुआ था। पल में सारी मोहब्बत का निशा उड़ान छू हुआ था। बकवास बंद अजाले अफरीदी, अगर तुम्हारी सोचों तक भी किसी और नाम की रसाई हुई तो मैं उसे भी खुरच के मिटा दूंगा। आया कि तुम मेरी जात की ऐसे नफी कर रही हो। उसगार ने उसके ऊपर मुकम्मल झुकते इसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से झगड़ा था। तुम मुझे मेरी इजाजत के बगैर हासिल नहीं कर सकते उसगार हैदर, वो डटल सी इत्तेजाज करते हुए बोली थी। तुम्हें मैं ऑलरेडी हासिल कर चुका हूँ मेरी जान। इसका बाकायदा परमिट मेरे हाथ में निकाह नामे की सूरत में है। उसगार के लहजे में ज़ोबेरियत छाई थी। इसकी धमकी पर वो बेजान हुई थी। जानती हो इस शब नशे की हालत में तुम्हें अगर किसी हासिल की चाह थी तो वो सिर्फ उसगार हैदर की थी। देखो उस दिन ये लब तुम्हारी रूह की चौसरी से शराब होते हमेशा के लिए तुम्हारे असीर बन गए और इन बेकरार लम्हों को अमर करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम्हारा इhtजाज बेकार है अब। उसगार इसकी हर मज़ामत का जवाब भरपूर अंदाजे में देता बोला था। फरार की कोई राह ना पाते वो बेबस हुई थी। उसगार मुझे कुछ वक्त दो प्लीज। वो
رو دی تھی اور ادکار پر مخمل سا اسے آزاد کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تک تم اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤ گی تب میں خود کو تمہارے اس ناکارہ احتجاج کا پابند کر لیتا ہوں، مگر صرف ایک حد تک۔ اس گاؤں میں کہتے ساتھ ہی وہاں سے جانے کو قدم اٹھا لیے تو وہ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کب تک وہ اوزار حیدر رابی بلا کو اپنے سر سے ٹال سکتی تھی؟ عجیب سوچوں نے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑائی تھی، پر ہر راہ ہی بند ملی تھی جیسے۔ اے چاند کی کرنوں جاؤ راہ، تم اس کو چھو کر آؤ راہ۔ وہ کب کب کیا کیا کرتا ہے، وہ جاگتا ہے یا سوتا ہے، وہ کس سے کیا کیا کہتا ہے، وہ شام کو کیسے لگتا ہے، جب سوئے تو کیسے دکھتا ہے، جب جاگتا ہے تب کیسا لگتا ہے۔ تم چپکے سے جاؤ راہ، تم اس کو چھو کر آؤ راہ، تم اس کے بنا ادھورے ہیں اور جینا مشکل لگتا ہے۔ تم کان میں اس کے کہہ دینا، کوئی یاد اسے بہت کرتا ہے۔ اے چاند کی کرنوں جاؤ راہ، تم اس کو چھو کر آؤ راہ۔ وہ چودھویں کے چاند میں روشن وہ چہرہ ڈھونڈ رہی تھی جب پشمانہ اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ زری کیا تم زنجبیل سے لڑ کے آئی ہو؟ پشمانہ کی بات پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں روٹھنے بنانے کی چاہت ہو۔ میں جانتی ہوں اگر میں اس سے لڑ بھی لوں تو اسے فرق نہیں پڑنے والا، پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں بچتی ہے لڑنے کی، وہ خود کلامی کرتے بولی تھی۔ زری تم خوش تو ہو نا زنجبیل کے ساتھ؟ کیا اسے بتا کے آئی تھی؟ ابھی تک اس نے کال نہیں کی، نہ ہی تم سے بات کی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پشمانہ اس کے بے خود انداز میں اسے ٹوکتے اس کی تھوڑی تھام گئی تھی۔ زری اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں خوش ہوں، سب کچھ تو پا لیا میں نے، جو چاہا تھا وہ شخص میرا ہے۔ اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زری کیا اس نے، میرا مطلب ہے کیا زنجبیل افریدی نے تمہیں؟ پشمانہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی وہ کیسے اس سے زنجبیل اور اس کے درمیان موجود رشتے کی نوعیت کی جانچ پڑتال کرے۔ زرلش اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا اس نے تمہیں میاں بیوی کے درمیان موجود رشتے سے آشنا کروایا؟ پشمانہ نے اس کے ہاتھ تھامے کہا جو کافی سرد ہو رہے تھے۔ زرلش کے لب زخمی مسکراہٹ آ جمی تھی۔ وہ بھلا اسے کیا بتاتی کہ اگر ایک آدھا بار اس نے حد سے تجاوز کیا بھی تو کیا اس کے چھونے میں کوئی معتبری تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ان لمحات میں نفرت کی سلگتی چنگاریاں صرف زرلش کو خستر کر دینے چاہتی تھی۔ زرلش نے دیوار کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ مجھے سکون کی نیند سونی ہے پشمینہ گل، تنہائی دھیمی آواز پشمانہ بمشکل سن پائی تھی۔ وہ وہاں سے اسے اٹھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ شکر تھا کاکا لکڑی لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ کسی دور دراز کے علاقوں میں گئے ہوئے تھے، ورنہ زرلش کی یہاں موجودگی طوفان ضرور لاتی۔ تمہیں زنجبیل سے بات کرنی چاہیے، اصلاً مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ پشمانہ اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی تو وہ چونکا تھا۔ میں کیا بات کروں، وہ تو اس دن بھی شاید ناراض ہو گیا تھا تبھی بات نہیں کی مجھ سے زیادہ، اب ہمارا کیا بھی زری کو بھگتنا پڑے گا۔ اداسی اس کے لفظ میں گھلی تھی۔ پشمانہ کے چہرے پر بھی تفکر پھیلا تھا۔ دیواڑی سے اندر آتی زرلش نے کچھ دیر رکتے ان دونوں کی کنورسیشن سنی اور خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک اس کی ذات کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا موجب تھی۔ اس نے کمرے کا لکڑی سے بنا دروازہ اندر سے کنڈی سے لگاتے بند کیا تھا۔ خاموش نظریں اس پوائزن پر پڑی تھی جو لکڑی میں لگی دیمک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پر وحشت سوچ سے بچنے کو خود کو گھر کا تھا، مگر دل سے زیادہ دماغ کے دلائل مضبوط تھے۔ اس نے ہاتھ میں وہ گلاس سی بنی شیشی اٹھائے، اس پر لکھے حروف کو پڑھا تھا جو موثر صحت اعتراض کے بتا رہے تھے۔ زرلش کے چہرے پر ایک خند مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہی تو دوا تھی اس کے دکھوں کی اور اس سے جڑے لوگوں کے مسائل کے حل کی۔ بتاؤ محبت کیسی ہے؟ استقامت کی قسمت سے جڑے قطرہ قطرہ زہر جیسی ہے۔ زرلش نے
उस शीशी को खोलते इसमें मौजूद दवा को अपने हलक में उतारा था। पास कहीं जंजीबील मुतमीन से मुस्कुराता हुआ नजर आया तो वो भी मुस्कुरा दी थी। खुश हो ना? उसने सवाल किया था। मुकाबले में मखसूस गर्दन हिलाई थी। जल्लिश ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था मगर जंजीबील पीछे हुआ था और वो लखड़ाती हुई जमीन पर गिरी थी। जंजीबील की शबिया रफ्ता रफ्ता कदम उठाते दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। जल्लिश का हल्क सूख रहा था जैसे कांटे से उभर आए हो, पर आंखें नमकीन पानी से तर हो रही थी। जंजीबील का आंख धुंधला रहा था। मैं जहर पी तो लूं शौक जार की खातिर, शर्त ये है कि वो सामने बैठ के मेरी सांसों को टूटता देखे। कुछ भारी गिरने की आवाज पर अरसलान से बात करती पिशवारा चौकी थी। अरसलान ने इसका चौकरा नोट किया तो पाँव में चप्पल आटते खड़ा हुआ था। बिल्ली होगी शायद। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा था जो बंद था। अरसलान का माथा ठटका था। उसने दरवाजा बजाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। जरी जरी कहाँ है? पेशवारा का दिल हौलराया तो वो दरवाजे से लगी उसे पुकारने लगी। अरसलान भी जैसे कुछ मोहब्बत सा था मगर पेशवारा की बेचैनी को देखते उसने दरवाजा धकेला था। कमजोर लकड़ी पे लगी लोहे की जंग आलूद कुंडी मामूली जब्त से ही अपनी जगह से हट गई थी। सामने का मंजर इन दोनों की जान निकालने को काफी था। उधर मुंह फर्श पर गिरी जल्लिश और इसके करीब ही शीशे की बोतल पड़ी थी जो खाली थी। अरसलान उसे अपने मजबूत हाथों में भरे गांव में मौजूद वाहिद क्लिनिक में लाया था। डॉक्टर साहब हमारी गुड़िया को देखिए। उसने अरसलान ने डॉक्टर को वो शीशी दिखाते रोते हुए कहा था। पशवारा अलग से बेहाल थी। उसे शहर ले जाना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं जिससे इसका इलाज हो सके। अताई डॉक्टर ने अपनी इसी नाकाम कोशिश के बाद जल्लिश को शहर ले जाने का मशवरा दिया तो वो जैसे अंधेरे कुएं में गिरे थे। फौरी तौर पर एक गाड़ी का इंतजाम करते वो लोग वहां से निकले थे। उसगार लैपटॉप पर बैठा कुछ सर्च कर रहा था जब वो हमेशा की तरह उदासी में डूबी हुई थी। उसने निगाह उठाए अजाले को देखा और कुछ सोचते लैपटॉप एक तरफ रखते मुकम्मल तवज्जो से उसे देखने लगा था। तुम जानती हो जंजीबील अफरीदी ने मुझे गिरास पहुंचाने के लिए क्या किया है? वो गहरी नजरों से इसकी एक एक जिब्स को देख रहा था। जहाँ जंजीबील के नाम पर उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी थी। उसने बरहा को अगवा करवाया था और मेरी बेवकूफ़ बहन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोल रही है कि जंजीबील ने उसे अगवा नहीं करवाया। वो सुस्त रवि से चलते उसके मुकाबले हुआ था। वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम आज भी उसे लेकर गलत फहमी का शिकार हो। अजाले का इब्तिदार काबिल दीदार था जो उसकार मिला कर रह गया था। इतना यकीन क्यों? शायद वो जेलस हुआ था क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ये यकीन मौजूद है। बहसियत इसके क्लोज फ्रेंड हम दोनों इसके नेचर से बखूबी आगाह है। वो बहुत हद तक नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। वो खामोश हो गया था। आज भी वो उसे ही ट्रस्ट करती थी। उसे जंजीबील से बदगुमान करने की हर चाल नाकाम ठहरी थी। जैसे जहरा आंटी और दस्तगीर अंकल को जंजीबील की खुफिया शादी का पता चल चुका है। उसने पूरे हफ्ते की खबरों का इश्तिहार बनाया था जिसे अजाला बेहद बेतरह चौंकी थी। और हमारी शादी का भी। वो इसके पास आते ज़ुबैरी अंदाज में बोला था। तुमसे हर तवक्को रखती हूँ। मैं अपने मफाद के लिए हर हद तक गिर सकते हो। अचानक ही अंदाज में तिरछी घुली थी। इसके करने पर ऑस्कार का कहका बुलंद हुआ था। अजाले ने उसे नागवारी से देखते वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए थे पर ऑस्कार ने उसका रास्ता रोका था। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए अपनों की बस्ती में। ऑस्कार का मुतबस्सम लहजा किसी तरह संजीदा नहीं लग रहा था। उसे मकसद अपना मजाक उड़ाता लगा था और यही बात इसकी आंखें भर गई थी। वो भी जैसे इसकी दिली कैफियत से आगाह था। तभी उसे इशारों से थामे अपने सामने किया था और अपनी पोरों पे उसके आंसू चुने थे। वो बेहिस ठहरी नहीं थी। ये मजाक बिल्कुल नहीं है। मैंने फेरी के लिए कह दिया है। आज हम अपने घर वापस जा रहे हैं हैदर नगर में। अपने घर पर इसका दिल सुकड़ समेटा था मगर हैदर नगर का सुनते दिल खाली हुआ था। वो भूल कैसे सकती थी कि इसकी हैसियत बदल चुकी थी।
उसकार हैदर, तुम क्या समझ रहे हो? जिस शख्स ने पूरी दुनिया के सामने मुझे रुसवा किया है, मैं इसका हाथ थामे वहां चली जाऊंगी। सुलगती आंखें, कांपती आवाज गुस्से की जाती जाहिर कर रही थी। और कोई चॉइस नहीं है मेरी जान, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आई प्रॉमिस मैं ही तुम्हें सबके सामने सुरखरू करूंगा। उसकार ने झुकते हुए उसके कंधे पर बूसा दिया था और वापस लैपटॉप खोले बैठ गया। वो दीवारों से सर टकराते टकराते थक चुकी थी, इसलिए बिना कुछ बोले ही वहां से हट गई थी। वक्त की बदलती करवट उसे रोज बरोज खुद से बंजर करती जा रही थी। अपने काम से फुर्सत पाते उसने जाले के कमरे में झांका, जो करवट के बल दूसरी तरफ रुख किए शायद सो गई थी। वो दबीज कालीन पर बड़ा आवाज चलते इसके पास आया था। इसकी ख्वाहिशों ने एक अनमोल हस्ती को कैसे हट किया था इसका अंदाजा था, मगर दिल बर्बाद को गो सुकून था कि वो इसकी है, इसके पास है, इसके नाम से मंसूब है। इसका सबिया चेहरा आंसुओं के मिट्टी नशरात से पुर था। उसकार ने जरा झुकते इसकी पेशानी पर बूसा दिया और इस पर कम्फर्ट उड़ाते कमरे से निकल गया था। कॉटेज से बाहर निकलते उसने ग्रिल से टेक लगाया, वसी और अजीज समुद्र पर निगाहें जमाई और सिगरेट फूकने लगा था। उसे बरहा की बातों पे यकीन नहीं था, मगर वो चाहकर भी जंजीर से बदगुमान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो रिश्तों को एक इज्जत और मोहब्बत के दायरे में लेकर चलने वाला शख्स था। पर जाले की मोहब्बत और उसे पाने की खुदगर्जी ने जो गलत राह चुनी थी, वो उसकार हैदर के लिए दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। पर अब मसाइल से भागने की बजाय जुर्रतमंदी से इनका सामना करना जरूरी हो चुका था। हैदर साहब उसे घर और ऑफिस से बेदखल कर चुके थे, तो इसकी सुलगाई चिंगारी से दस्तगीर और फातिमा भी अपनी अकलौती बेटी से शदीद नाराज थे। उसने मुस्तरिब होते सीना मसला था, जहां जलन का एहसास बढ़ रहा था। चुनाचा वो अफरीदी प्रोडक्शन हाउस के शेयर्स में 20% का मालिक था, इसलिए जंजीबील उसे इतनी जल्दी वहां से निकाल नहीं सकता था। वो कंपनी जो हैदर, ज़हरा और दस्तगीर के साथ साथ उसगार हैदर के शेयर्स में थी, वो तीनों ही इसके बगावत के बावजूद इसका फैसला नहीं कर पा रहे थे। जबकि हैदर साहब अपने खानदानी बिजनेस से उसे अलग कर चुके थे, और जिसकी खातिर उसने पुरतैश जिंदगी को छोड़ा था, वो तो अव्वल रोज से ही अनजान थी। वो हल्के से नॉक करते बिना इजाजत का इंतजार किए ज़हरा अफरीदी के कमरे में आया था, जो इस वक्त किताब पढ़ रही थी। वो और इसकी आहट महसूस कर लेने के बावजूद भी नजरें नहीं उठाई थी। वो इनके पाँव के करीब आ बैठा था। 1 हफ्ता हो चुका था वो इससे बात नहीं कर रही थी, जो इसके बिना निवाला मुश्किल से खाती थी। मॉम, आप मुझे उस जुर्म की सजा दे रही हैं जो मुझसे सरजद ही नहीं हुआ है। वो इनके पाँव पर हाथ रखते बोला था। इनके बेजान पाँव इसके ठंडे हाथों का लम्स जरूर महसूस कर सकते थे, पर वो चाहकर भी इन्हें समेट नहीं सकी थी, क्योंकि वो नर्वस इन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर पाते थे। मम्मा प्लीज मुझसे बात करें। वो इनका हाथ थामने लगा था, जिन्होंने किताब एक तरफ रखते दोनों हाथ सीने पर बांध लिए थे। इनके खूबसूरत चेहरे के नक्कुश में तनाव और आंखों से छलकते शांतपन ने जंजीबील के दिल का खून किया था। बरहा के अगवा में मेरा कोई हाथ नहीं है, हाँ, मगर मैं इस बात से जरूर आगाह रहा हूँ कि उसकार हमेशा से ही जालने के लिए जुनून की हद तक इन्वॉल्व रहा है। आपका फैसला मोहतरम था, तभी इनकार की गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। और अब तुमने सोचा चंद 1 साल में माँ मर जाएगी और तुम अपनी मनमानियां करते फिरोगे। ज़हरा ने चुप का रोज़ा तोड़ा तो जंजीबील का दिल कट के रह गया था। मम्मा प्लीज ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने कभी आपके हुक्म के खिलाफ जाने का नहीं सोचा है। उसने इनके घुटनों पर हाथ रखते वाज़ेहत दी थी। हाँ, तभी एक गंवार लड़की को बिना बताए अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मैं पूछती हूँ जंजीबील, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? टाट में पैबंद लगाते ज़हरा का जलाली रूप दर आया तो जंजीबील ने नजरें जमीन पर गाड़ी। एकदम फिर से जलिश पर गुस्सा दब आया था, लेकिन अगर वो माँ के सामने इसकी
تصدیق میں کچھ بولتا تو شاید یہ اس کے ساتھ ایک اور ناانصافی ہوتی، تبھی اس کے وقار کو برقرار رکھتے لب سی لیے تھے اور خوب وہ تمہیں بے وقوف بناتے یہاں سے چلتی بنی۔ اور سوال آیا ہمارے وفادار ملازموں پہ، میرے اشارے کو جاڑ کے رکھ دیا اس لڑکی کی نبوست نے۔ زہرا کے دل و غبار باہر آ رہا تھا اور وہ چپ چاپ سننے پر مجبور تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا زنجبیل؟ میں ایک چھوٹے گھر کی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کر لوں گی۔ اب کہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی تو زنجبیل نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا، جو ہر درجہ اسٹیٹس کا شنس ہونے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ تمہارے چپ سے متاثر ہوتے میں تمہیں معاف کر دوں گی تو اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ جس دن زالہ اس گھر کی بہو بن کر آئے گی اس دن میں شاید تمہیں معاف کر سکوں۔ زہرا کا ظلم مارا انداز زنجبیل پر گھڑوں پانی برسا گیا تھا۔ کچھ دیر مزید ان کی سست سننے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ زہرا کی خود ساخت ناراضگی میں خاطر خواہ کمی نظر آئی تھی جب وہ پھر سے ماں کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ اس دن بھی وہ نہیں انہیں آفس کی مکمل ڈیٹیل دیتے کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کر رہا تھا جب اس کا سیل بج اٹھا تھا۔ ارسلان کا نمبر دیکھتے وہ تصدم کا شکار ہوا تھا۔ کس کی کال ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہے زنجبیل؟ زہرا کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ وہ ماما ایک دوست ہے، کافی دن سے ملنے کا کہہ رہا تھا مگر وقت ہی نہیں مل پا رہا تو زنجبیل نے کال کٹ کرتے سیل سائلنٹ میں کر دیا تھا۔ ویسے بھی زہرا آج کل اس کی ہر ایکٹیو پر مشکوک نظر آتی تھی۔ کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ زہرا کے آفس سے اس کا سرسری سے تعلق تھا، جبکہ زہرا کے اصرار کے باوجود بھی اس نے اپنے پروفیشن کو زیادہ ترجیح دی تھی اور اسی سلسلے میں اسے کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ رہا تھا۔ زہرا مطمئن سی تھی کہ اگر اس کا چھپ چھپا کے بھی زلش سے کوئی رابطہ ہے تو زنجبیل کے باہر کے ٹور سے کچھ دن کا ٹوٹا رابطہ انہیں اس مسئلے پر سوچنے کا مزید وقت دے گا۔ ادھر زلش کے لیے پریشان ارسلان نے زنجبیل کے گھر کا فون نمبر پتہ کرتے کال کی تھی جو اتفاق سے زہرا نے اٹھائی تھی۔ ارسلان کے تعارف اور حوالے نے انہیں انگاروں پر گھسیٹا تھا، جس کے بعد وہ بنا کسی لحاظ انہیں لالچی اور کم ذات بولنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت کچھ سنا گئی تھی جو زنجبیل اور زلش کے رشتے کو ختم کرنے کی کڑی ثابت ہو سکتا تھا۔ زلش کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اس کی اسٹمک تھراپی کرتے زہریلی دوائی کا اثر ظاہر کیا تھا۔ کیوں لائے ہو تم لوگ مجھے یہاں؟ ایک بوجھ تھی نہ تم سب پہ، میں مر جانے دیا ہوتا مجھے۔ زلش کے آنسوؤں کا مفہوم زہرا کی باتوں سے واضح تھا۔ ان بڑے لوگوں نے پہاڑوں کی ننھی شہزادی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ارسلان بھی زنجبیل کی گنج ادائی پر جیسے ٹوٹ سا رہا تھا۔ زلش کو اس نے بہن کہا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اسے بہنوں جتنی محبت دی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے ہمیں تمہاری؟ جانتی ہو 2 دن سے حلق سے نوالا نہیں اترا، تمہیں ان حالوں میں دیکھتے دل جل رہا ہے۔ کسی اور کی سزا اب تم ہمیں دو گی؟ پشمانہ اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ میں اپنے کی سزا خود کو دینا چاہتی ہوں پشمانہ، تم سب کے سکون کا باعث بنے گی میری موت۔ وہ ہر درجہ شکست خوردہ سی اور مایوس تھی۔ پشمانہ اس کے سر میں انگلی چلاتے اسے سمجھانے لگی تھی، پر وہ کسی ضدی بچے کی مانند اپنی ضد پر اڑتے اپنی جان لینے کے ڈر پر تھی۔ مگر مرہم اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی انسان کی توجہ کرتی ہے۔ ایسے ہی ارسلان اور پشمانہ کی توجہ اسے زندگی کی طرف لانے لگی تھی۔ وہ زری جس نے زنجبیل کے گھر رہتے ہنسنا بھول گئی تھی اب اکثر پشمانہ کی باتوں پر کھلکھلا اٹھتی تھی اور پشمانہ اسے بار بار ایک ہی لفظ کہتی تھی،
انت الہم، تم محبت ہو، زہر خند زدہ عشق ہستا، کیونکہ تمہارا ہنسنا محبت ہے۔ سنو محبت کیسی ہے، وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے لڑکی جیسی ہے، سر کندھاری اناری جیسی دھمکتی، رنگت سورج کی تپش سے مزید لال ہو چکی تھی، مگر وہ جنگلی پھولوں کی اوڑ میں چھپتے ان رنگ برنگی تتلیوں کو پکڑ رہی تھی، جبکہ کسی کی نظروں کا پرتش آرتس اسے ڈسٹرب کرنے لگا تھا، مگر وہ سر جھٹکتے ایک بار پھر سے اپنے کام میں مگن ہوئی تھی۔ زری آ جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ پاس ہی کہیں چائے کی پتیوں کا ٹوکرا کمر پر باندھے پشمینہ نے اسے آواز دی تھی تو پھول پر بیٹھی تتلی اپنی جگہ سے اڑ کر دور بھاگی تھی۔ زرلش کے چہرے پر مایوسی نے بسیرا کیا، وہ غصے میں دھمکتی لال رنگت لیے پشمانہ کے پاس آئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری تتلی اڑ گئی۔ پشمانہ نے معذور اس کا ہوتے انداز دیکھا اور پھر کھیت سے باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ سنو، وہ تتلی تمہاری نہیں تھی، وہ جو چیز تمہاری ہوتی ہے وہ تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی۔ پشمانہ نے باہر نکلتی ہی اسے کہا تھا اور گاؤں کے سیٹھ کے پاس اپنا ٹوکرا چھوڑتے اپنے حصے کے سیب پیسے وصولے اور اس کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف بڑھی جیسے زنجبیل۔ زرلش کی محبت خود کلامی کی آواز پشمانہ تک پہنچی تو اس کے قدم رکے تھے۔ زنجبیل ایک سراب ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے زری، وہ اسے اٹل حقیقت بتا رہی تھی، وہ میرا شوہر ہے۔ زرلش نے نظریں جھکائے کسی جرم کی طرح اپنے رشتے کا پرچار کیا تھا۔ وہ انا کا مارا ایک بزدل مرد ہے جس نے مخصوص اپنے انتقام اور انا کی تسکین کے لیے تم سے دکھاوے کا رشتہ بنایا ہے۔ نکل آؤ احمقوں کی جنت سے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اس سنہری تتلی کی طرح۔ اب کے پشمانہ اسے خواب نہیں دکھاتی تھی، اس کے ہاتھ امید کے جگنو نہیں تھماتی تھی، بلکہ اسے زندگی کے وہ کڑے پہلو دکھاتی تھی جو سچ کے حقائق پر مبنی تھے۔ زرلش کے اندر مایوسی گھر کرنے لگی تھی۔ پشمانہ اسے بدلنے کی صحیح کر رہی تھی اور بدل بھی گئی تھی، پہلے سے زیادہ چیزوں کے اندر گہرائی ڈھونڈتی تھی، مگر اس کا دل کوئی نہیں بدل پایا تھا جہاں زنجبیل افریدی اپنی تمام تر گنج ادائی کے ساتھ موجود تھا۔ پشمانہ اور ارسلان نے اس کا پرائیویٹ ایڈمیشن کروا دیا تھا، وہ چاہتے تھے وہ زنجبیل افریدی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائے، مگر رات کی تنہائی میں توجہ کے کچھ قیمتی پل یاد آتے تو وہ ہمیشہ اس کا ساتھی بن جایا کرتا تھا، جس سے وہ ہزاروں گلے شکوے کرتی اور لڑتی جھگڑتی تھی، پر پشمانہ اور ارسلان کے سامنے وہ اس کا نام لینے سے گریز ہی کرتی تھی۔ پشمانہ کے سسرال والوں نے زرلش کی یہاں موجودگی پر سوال اٹھائے تو زرلش ایک بار پھر سے خود کو ان سب کا مجرم گردانے لگی تھی۔ مجھے ایسے گھر میں شادی ہی نہیں کرنی ہے ارسلان جہاں میرے رشتے کی قدر نہیں ہوگی۔ آج انہیں زری کے یہاں ہونے پر اعتراض تو ہو تو کل اس سے ملنے بھی نہیں دیں گے۔ پشمانہ نے ارسلان کو کہا تو زری کا دل ہولوایا تھا۔ ایک غلطی کے اتنے خسارے وہ چپ چاپ ان کے دربار سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ ادا ہے، خواب ہے، تذکیر ہے، تماشا ہے، ہماری آنکھوں میں ایک شخص بے تحاشا ہے، خبردار جو اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا۔ غصے سے دھمکتی آواز نے اس کی آنکھیں جل تھل کی۔ کیا شخص تھا جو رونے بھی نہیں دیتا تھا اور درد بھی دیتا تھا، پاس رہنے نہیں دیتا، دور آ جانے پہ بھی ہر پل پاس تھا۔ اس کی آنکھوں میں زری کو ہمیشہ زندگی گزارنے کا راستہ نظر آتا تھا، مگر اس ہرجائی نے ایسے آنکھیں پھیری تھی کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے نام سے منسوب تھی، جانے کیوں دل نادان اس کی تمام تر بے تلفیاتی کے باوجود بھی اس کا انتظار کرتا تھا، کیونکہ اس کے سر پھرے عشق کا افسانہ لازوال تھا۔ انتظار لا حاصل سا تھا، پر انتظار تھا اس کے لوٹ آنے کا۔ پہاڑی پہ ڈوبتا سورج اس مناظر کو دکھ سے دیکھتا اور اس کی امیدوں کو اپنے ساتھ لے جاتا نظر آتا۔ حیدر نگر میں اس وقت سب بھی ڈنر کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ حیدر صاحب کی اکلوتی بہن شمیلہ بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھی، جو بیچکی کی چادر اوڑھتے ارسد دراز سے یہاں مقیم تھی۔ ورحہ اور درخشاں کسی بات میں آپس میں الجھتی نظر آئی تھی۔ السلام علیکم، بھاری دمنگ انداز میں سب ہی چونکے تھے، آنے والے پہ نگاہ پڑتے سب دنگ رہ گئے تھے۔
उसगार हैदर के हाथ में हाथ दिए ठहरी ज़ाले अफरीदी इन्हें पहले से भी ज्यादा वीक नजर आई थी, जबकि उसगार के अंदाज से वही खुद एतमादी छलक रही थी जो इसकी तबीयत का खासा थी। तुम यहाँ आए कैसे? गार्ड ने मेरी इजाजत के बगैर बिना तुम्हें आने भी दिया तो कैसे? चौकीदार रानी गार्ड को बुला के लाओ और उसे घर से बाहर दूर फेंको। हैदर साहब का गुस्सा आसमान को छूने लगा था, मगर इनकी बातों से ये वाज़ेह नजर आ रहा था कि उन्होंने जमा का ज़ियान इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब ज़ाले के लिए गुंजाइश थी। हैदर क्या हो गया है तुम्हें? आखिर जुर्म ही क्या है? मेरे बच्चे का एक पसंद से शादी क्या कर ली? पूरा जमाना ही इसका दुश्मन हो चुका है। शुमाइल ने आगे बढ़ते ज़ाले का हाथ थामा था। इस वक्त हैदर साहब की कमजोरी जैसे हाथ आई थी। पसंद से शादी, इस राहजर ने हमें जमाने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सालों से चली आ रही अफरीदी खानदान से दोस्ती को मिलिया मेट कर दिया है। आप दोनों की शह पे ये इतना आगे बढ़ा, मेरे पास और मेरे घर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सुना आप लोगों ने? उसगार हैदर ज़ाले के सामने अपनी इज्जत अफजाई पर सीखता हुआ था, मगर कुछ भी कहना हैदर के गुस्से को आवाज देने के मुदाफे था। तभी खामोशी इख्तियार की थी। दरखशंदा ने ज़ाले को गले लगाया तो उसे सिक उठी थी। मरहा को भी इससे हमदर्दी हो रही थी, खुद जो 15 दिन अपने इशारे से बेठिकाने चिड़िए की तरह रही थी। हैदर साहब के सामने क्या जाने वाला जज्बाती सीन इन्हें चटकने पर मजबूर कर रहा था, और वो खाना दरमियान में छोड़ते साथ ही अपने कमरे में चले गए थे। उसकार भी एक नजर ज़ाले को देखता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। शुमैला इसके पीछे आई थी तो दरखशंदा ज़ाले को थामे डाइनिंग टेबल पर ही बिठा गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, ओजी ने जो कुछ भी किया ये हम सब के लिए ही डिप्रेशन कर देने वाला था, लेकिन बेटा मैं इसकी कोई वजाहत नहीं दूंगी, बात सवाए इसके कि वो जो कुछ हुआ शायद इसमें ही ऐसे ही होना किस्मत में लिखा था। वो इसका हाथ तसल्ली भरे अंदाज में दबाते बोली थी, ज़ाले आपके भाई बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। मरहा ने जज्बाती अंदाज में कहा तो ज़ाले उसे देखने लगी। बस कुछ जज्बाती है। आखिरी जुमला बोलते इसकी आवाज़ धीमी थी। आंटी मुझे मामा पापा से मिलना है, वो रोमांसी सी बोली तो दरखशंद को चुप लगी थी। भला क्या पता थी कि इनके लाडले बेटे ने कैसे कैसे पंतरे चलते दस्तगीर अफरीदी और फातिमा को इसके खिलाफ कर दिया था। हाँ बेटा क्यों नहीं, लेकिन पहले कुछ खा लो। अपने अंकल की बातों का बुरा मत मानना, वो सिर्फ ओजी से नाराज हैं, बल्कि हम सब भी शायद उससे नाराज हैं, शदीद नाराज हैं, और देखना कोई भी उससे बात नहीं करने वाला। दरखशंदा के अंदाज पर उसे धारस बंदी थी कि कम से कम वो सब गलत का साथ नहीं दे रहे थे। मरहा और दरखशंदा के इसरार पे उसने चंद एक लकमे जहर मार किए तो इसकी ख्वाहिश पर दरखशंदा ने मरहा के हमरा ही इसका बिस्तर लगवा दिया था। ज़ाले की दिलजोई करने के बाद वो उसगार के कमरे में आई तो शुमैला और वो किसी बात पे उलझते नजर आए थे। बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैं अफरीदी हाउस जाऊंगा, ना किसी को भी अपने अमल की वजाहत दूंगा, ना ही ज़ाले जाएगी। बेटी की वही सरकश और सरखुद तबीयत इन्हें पल में ही हाइपर कर गई थी और उन्होंने उसगार को थप्पड़ जड़ दिया। शर्म तो नहीं आ रही ना, किसी की बेटी से इसका घर छीनते। यही सब अगर मरहा के साथ होता तो वही टिपिकल माँ वाले जज्बात। तो मैं खुश होता कि मेरी बहन को इतना चाहने वाला शौहर मिला है। उसका अंदाज कतई गैर संजीदा था। दोनों खवातीन वर्चुअली रह गई। और क्या गुनाह किया है ले तो आया हूँ आपकी बहू को सबके दरमियान, आपको ही चाहती बहू की देखें, बना किसी खर्च के इतनी खूबसूरत बीवी ले आया। वैसे वो है कहाँ? उसगार की मुंह फट तबीयत से सब नाला थे, मगर इस वक्त तो वो जहर लग रहा था। खबरदार, अगर तुमने उस बच्ची को जरा भी डिस्टर्ब किया तो तुम दोनों के अंदाज से बखूबी अंदाजा हो रहा है तुम्हारे इससे दरखास्त किस नहिज पर है। वो मरहा के कमरे में ही रहेगी जब तक हालात कुछ बेहतर नहीं हो जाते। दरखशंदा की बात पर उसका मुंह खुला रह गया। ये सब उसने आपको कहा और आपने मान लिया। मैं देखता हूँ उसे कैसे वो रहती है वहाँ। उसगार वहाँ से निकलना चाहता था जब दरखशंदा ने उसे बाजू से पकड़े पीछे किया। वो दो खवातीन के दरमियान बुरा फंसा था। इस
ناٹ فیئر ماں، وہ میری بیوی ہے۔ اس کا نروٹے انداز درخشندہ کی تیوریوں پر بل چڑھا گیا تھا۔ اب اگر اسے یہاں لے کر آ ہی گئے ہو تو آگے کے معاملات ہمیں ہینڈل کرنے دو۔ ویسے بھی تمہارے بابا بہت غصے میں ہیں، انہیں ذرا بھی اس ان بن کی خبر ملی تو وہ اسے خود افریدی آؤٹ چھوڑ آئیں گے، پھر بیٹھ کے بجانا شدیانے۔ شمیلہ نے بھی کھری کھری سنائی تو وہ بری بری شکلیں بنانے لگا۔ پھپھو آپ بھی؟ اسے جیسے امید نہیں تھی کہ کچھ دیر پہلے حیدر کے سامنے اس کی سہ لینے والی شمیلہ ایسے پتھر بدل جائے گی۔ جی میں بھی۔ درخشندہ اس الو کے پٹھے کے لیے کچھ کھانے کو بھجوا دینا، اولاد بس آزمائشی ہی بن کر رہ جاتی ہے ماں باپ کے لیے۔ وہ اپنے بڑے پن کا رعب جماتے وہاں سے چلی گئی تو درخشندہ نے بھی جانے کو پلٹی تھی، مگر اوزان نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو کا ہار ڈالا تھا۔ میری سویٹ مما جانے کب تک ناراض رہیں گی آپ؟ آخر یوں مجھ سے کوئی بھی تو بات نہیں کر رہا۔ اس کے لاڈ بھرے انداز پر درخشندہ کا دل پسیجا تھا، مگر وہ اولاد کو غلط جگہوں پر سپورٹ کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ معاف کر دینا مما، وہ ان کے رخساروں پر کس کرتے بولا تھا، جب تک ازالے تمہیں معاف نہیں کرتی مجھ سے بھی امید مت رکھنا۔ وہ اسے ڈوک ڈوک جواب دیتی اسے جھٹکتے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ خالی مکہ ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ معاملات کافی خراب تھے، نئے سرے سے بنانے پڑنے تھے۔ خالی بستر دیکھتے ازالے کی یاد ستائی، مگر یقیناً مرا کی سخت سیکورٹی میں تھی تو اس لیے دل پر پتھر رکھتے بستر پر دراز ہوا تھا۔